लाइव हो गए हम लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो अच्छी आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब कोशिश की कनेक्ट करने की तो आई वाज गेटिंग अ मैसेज दैट द क्लास इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड, बट नाउ द क्लास इज कॉन्फ़िगर्ड। आई कैन सी द वीडियो, आई कैन सी योर मैसेजेस फ्लोइंग विद इन द चैट। सो आई जस्ट wanted to know that am I clearly visible to all of you? Am I clearly audible to all of you? So if it is all clear, then we can start with today's class. So in the meantime, so we are at class 10, right? So we are at class 10 and the date is obviously 25th of April 2023. So we are at class 10. Yesterday we had already studied the water cycle and nitrogen cycle. For the sake of revision, I have brought nitrogen cycle on the screen first, and then once we have revised it a little bit, then we will be seeing the next cycles like carbon cycle, sulfur cycle, and phosphorus cycle, right? So audio and all is very, very good. So all okay, thank you. And I hope all of you are also doing good this morning. And let us now start the class. It is 11:04 a.m. and I think we should now start the class without any further delay, right? So here we are. This is the nitrogen cycle that we had seen yesterday, and we had written down the procedures of nitrogen cycle, right? But in this nitrogen cycle, I'm just wanting to revise a few things so that you become totally clear about the things. So इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, and now let me write down on the board how does the nitrogen cycle look like, okay? Give me a moment. So this is something that you can connect with me, that this is the atmospheric nitrogen, और 5 मिनट लगेगा इसको रिवाइज करने में, और ये मैं शेयर भी कर लूंगा, but please write down if you can. So this is the atmospheric nitrogen. So this phase is atmosphere. From the atmosphere, nitrogen will be removed in the form of oxides of nitrogen by lightning, and nitrogen will also be removed by nitrogen fixation. Nitrogen fixation will produce ammonia, and nitrogen fixation takes place in two ways. Nitrogen fixation can be by symbiotic bacteria, and what is a good example of symbiotic bacteria? Good example of symbiotic bacteria will be rhizobium. Apart from rhizobium, Anabaena and Nostoc are also good example for symbiotic nitrogen fixing bacteria. Then we come to free living nitrogen fixation. That also happens, and here also there are a number of bacteria which will be carrying out free living nitrogen fixation. For example, Azotobacter, Azotomonas, etc. So ये क्या करते हैं? ये free living nitrogen fixation करते हैं. But whenever nitrogen fixation is taking place, all right, so this is the process of nitrogen fixation. ये एक process हो गई. ये कलर थोड़ा सा deep कर दूं so that it is clearly visible to you. So whenever nitrogen fixation is taking place, or whenever this atmospheric lightning is causing the formation of nitrogen oxide, there is some step जो इसके बाद भी हो रहा होगा. There are certain steps. So in this case, that step is that it will combine with water. It will fall as rain shower. So this is acidic rain, and when it comes in water, sorry, when it comes in soil, it will be getting dissociated. So there will be dissociation in the soil. So HNO3 will dissociate into H plus and NO3 minus. This NO3 minus is nitrate, and nitrate can be directly taken up by the plant, something that we have learned yesterday, है ना? कि nitrate can be directly taken by the plant. So ये nitrate जो है will be taken by the plant. This ammonia can be taken by the plant, and this ammonia can be taken by certain microorganisms like fungi and bacteria for their own nourishment. Okay, so atmospheric nitrogen is going to be converted into ammonia, or it is going to be converted eventually into nitrate. So in the soil, what are the forms of nitrogen which are present? Soil में nitrogen के कौन-कौन से form होते हैं और उन forms का होता क्या है? That is something we are going to see. If there is any doubt, let me know, and I will be taking up your doubts. अच्छा मैं साइड हट जाऊं, बस यही एक रिक्वेस्ट है. तो चलो मैं साइड हट गया. Please explain the microbial processes. I'm going to do that. Symbiotic bacteria roots nodule में जाते हैं बिल्कुल, और free living soil में ही रहते हैं, right? That is perfect. Nitrogen in atmosphere is any use. Nitrogen in the atmosphere is a wonderful neutral type of gas. It does not react easily with most of the things, and that way it is just a very, very important gas to fill most of the atmospheric constituent. फिर oxygen है, तो oxygen is obviously available for your respiration, and oxygen is also something that will cause surface oxidation of so many things. ठीक है ना? So nitrogen being neutral neither does any good nor does any harm. Okay? अब हम आते हैं forms of nitrogen in soil. सबसे पहले ammonia. What are the things which contribute ammonia in the soil? There are three things which will contribute ammonia in the soil. The first thing will be nitrogen fixation. Second is a process that we call as ammonification. What is ammonification? Ammonification is conversion of organic compounds containing nitrogen into ammonia. So organic compound that contains nitrogen, an example can be amino acid and protein. But when these amino acids and proteins are broken by bacteria, जब bacteria इन amino acids को break करते हैं, fungi इन amino acids को break करते हैं, तो इन amino acids से amino group को निकाल देते हैं. और amino acid से organic amino containing compound से जब हम ammonia वाले group को निकाल देते हैं, this is something that we know as what? This is something that we know as ammonification. So the second process is ammonification. It is a microbial process. And the third process that is there is human intervention, that is
application of fertilizers. Okay, so this is one of the sources. Second source is organic compounds containing nitrogen. They will be mainly proteins and amino acids in dead and waste biological matter. Now, what happens to this? This is something that will go through ammonification and that will be releasing ammonia. So this goes through ammonification and that releases ammonia, right? So the process is ammonification, and ammonification has given rise to ammonia. The third is nitrite and nitrate. That is the third and last form of nitrogen in the soil. Nitrite and nitrate. So the process is known as what? कल पढ़ा था आप लोगों ने. This process is known as nitrification. And in nitrification, what happens? In nitrification, we see ammonia first converting into nitrite and then converting into nitrate. So this is called nitrification. What all in this entire thing are the processes carried out by microorganisms? दूसरे शब्दों में, what are the processes which are microbial processes, जिनको microorganisms चलाते हैं? उन processes को अब मैं pink से circle कर रहा हूं, जो processes को microorganisms run करते हैं, क्योंकि prelim में इस तरह के questions can be asked to you. So first and foremost, ammonification. Next is nitrogen fixation. So, but nitrogen fixation can also take place without microorganism, and we are going to see the three types of nitrogen fixation. Okay. But majority of the nitrogen fixation in the biosphere that happens by bacteria. Majority. There are other processes also. वो हम आगे देखने जा रहे हैं. Ammonification. These two. So ammonification यहाँ भी है, जिससे अमोनिया बन रहा है. So that is one, and then entire nitrification. So the major process in the soil that runs and that keeps moving nitrogen from one form to another, they happen to be the microbial processes. Are we clear about it? Is there any doubt? नाइट्रोजन के बारे में पूछ रहे हो. फ्री नाइट्रोजन इज समथिंग दैट विल नॉट स्टे इन द सॉइल इवन इफ डीनाइट्रिफिकेशन हैज हैपेंड, जिसकी वजह से नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्री नाइट्रोजन. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट एक्चुअली हैपेंस दैट दिस फ्री नाइट्रोजन इज समथिंग दैट विल एस्केप आउट ऑफ द सॉइल, सो वी डू नॉट कंसीडर इट. ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट. ये तो बहुत ज्यादा फेंट है. व्हाट हैपेंस टू नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द सॉइल? Ammonia, nitrate. Let's deal with ammonia first. So what happens to ammonia? Either it is taken up by, और जो पहले लिख रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको स्टार मार्क भी दे दिया. ठीक है, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो ज्यादा कॉमनली होता है, आई विल बी गिविंग स्टार मार्क. सो इट इज टेकन अप बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया. दिस इज द मेजर प्रोसेस. ठीक है, हमें सोच के लगता है ना कि इट विल बी टेकन अप बाय द प्लांट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द प्लांट्स आर नॉट द मेजर सोर्स, रादर इट इज द बैक्टीरिया एंड फंजाई व्हिच टेक अप मोस्ट ऑफ द अमोनिया फ्रॉम द सॉइल. बट सम अमाउंट ऑफ अमोनिया विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. खासतौर पे जहां पे सॉइल एसिडिक होगा, क्योंकि एसिडिक सॉइल में क्या होता है कि देयर इज अ वेरी लेस एसिडिक सॉइल में देयर इज अ वेरी लेस ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो वहां पे क्या हो रही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ अगर कम हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली देयर विल बी लेस माइक्रोबियल कंपटीशन फॉर अमोनिया, एंड नाउ द प्लांट्स विल बी एबल टू टेक मोर एंड मोर अमोनिया. ठीक है ना. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. उसके बाद बात आती है कि नाइट्रेट का क्या होता है. नाइट्रेट विल बी mainly taken up by the plant. Nitrates are mainly taken up by the plant, and then nitrate becomes a part of plant biomass. और एक बार ये plant biomass में आ गया, तो then it will be a part of what? Then it will be a part of the trophic chain. That plant biomass will be eaten by the herbivores. Herbivores will then be eaten by the carnivores, so on and so forth. Okay, but some of the nitrate will be going through the process of denitrification. In denitrification, nitrate is converted into nitrogen gas, and this nitrogen gas will leave the soil and will go up in the air. So these are the two major compounds, NH3 and NO3 minus, and these are the things which happen. The star marked processes, these and these are the major processes. Okay, the star marked processes are the major processes, the other processes are minor processes. Okay, इसके अलावा कुछ और भी compounds थे जिनको अभी हमने देखा नहीं है. So now the time has come to see them. Organic nitrogen compounds. So these compounds go through the process that we know as ammonification.
ठीक है. So there are three compounds we are talking about. Two are major. This one is a part of dead and waste material. अब मैं थोड़ा सा बोर्ड से हट जाता हूं. कल वाले पीडीएफ डाउन अपलोड नहीं हुए हैं. दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग. मैं आज ही क्लास के बाद एक बार कोऑर्डिनेटर से बात करता हूं, क्योंकि कल मैंने शाम में ये शेयर कर लिया था, तो इट इज नॉट गुड कि आपके साथ शेयर नहीं हुआ है. मैं आज फिर से क्लास के बाद कोऑर्डिनेटर से बात कर लूंगा. आई एम सॉरी फॉर दिस कि ये वाली परेशानी हो गई. व्हाट इज डिकम्पोजिशन इन माइक्रोबियल प्रोसेसेस? डिकम्पोजिशन का मतलब है वही कॉम्प्लेक्स मैटर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिंपलर मैटर. सो दैट इज डिकम्पोजिशन, समथिंग दैट वी हैव डन इन इकोसिस्टम. ऐसा तो है नहीं कि किया है. डीनाइट्रिफिकेशन कल किया था. आप जो पूछ रहे हैं डीनाइट्रिफिकेशन, तो डीनाइट्रिफिकेशन तो हमने किया था, राइट? आयुष कह रहे हैं कि हाउ टू रिमेंबर दीज नेम्स. नथिंग. रिवीजन 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 एंड स्लोली यू विल बिकम कंफर्टेबल विद these names. So it is not something where there is any secret. If you are revising, you are going to remember it. So revise, take some interest. Develop some methods and it will be done. Explain in English as well करता हूं ना अभी. ठीक है, jotting is done. That is very nice. बस एक और चीज आप लोगों को बताना है. That is, what is nitrogen fixation? थोड़ी इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे. ठीक है, बैकग्राउंड में जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर. सबसे पहले लेट अस लुक एट डाइनाइट्रोजन. डाइनाइट्रोजन का मतलब है this, right? So dinitrogen is the most abundant gas in the Earth's atmosphere. There is no doubt about it. Now the thing is that this dinitrogen is made up of two nitrogen atoms triple bonded with each other. What are they? They are triple bonded. There are three covalent bonds here. Because of that, it becomes very very stable. ये बहुत stable है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि तीन कोवैलेंट बॉन्ड से दो नाइट्रोजन के एटम बंधे हुए हैं. तो ये तीन कोवैलेंट बॉन्ड नॉर्मली ब्रेक नहीं होता, और यही रीजन है कि ये डाइनाइट्रोजन इतना ज्यादा न्यूट्रल रहता है कि अक्रॉस द टेंपरेचर रेंज ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता. बहुत हाई टेंपरेचर पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा. ये टेंपरेचर तब ये बॉन्ड तब ब्रेक होगा व्हेन यू अप्लाई कैटलिस्ट. जब कैटलिस्ट अप्लाई करोगे तब ब्रेक होगा, वगैरह वगैरह. अदरवाइज ये जो हमारा डाइनाइट्रोजन है, दिस डाइनाइट्रोजन इज गोइंग टू रिमेन द वे इट इज. ये बात अब क्लियर है हमारी कि ये डाइनाइट्रोजन बिकॉज ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड इट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक सो इजीली. ठीक है, अब आगे आओ. तो ये डाइनाइट्रोजन है, इट इज वेरी स्टेबल, ये ऐसे ही रहेगा. एंड दैट इज द रीजन कि इनटू एटमॉस्फेयर का सबसे अबंडेंट गैस किसी के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा, करेगा लेकिन रिएक्शन करने की अपनी शर्तें होंगी, ऐसे ही नहीं रिएक्ट कर लेगा. तो व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन देन? ये तो हमारा हो गया बैकग्राउंड. ठीक है, ये पूरा का पूरा हो गया हमारा बैकग्राउंड. और बैकग्राउंड की समरी क्या है? बैकग्राउंड की समरी है दैट डाइनाइट्रोजन इज वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल है, एंड नॉट इजीली रिएक्टिव, आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा. ये है इसका बैकग्राउंड. डन. कॉलेज के दिनों में हम ऐसे ही नोट्स बनाते थे, और इन चीजों को रिवाइज करना इतना आसान हो जाता था, और मुझे इस चीज की चिंता नहीं होती थी कि मैं इसको लिखूंगा कैसे. मुझे हमेशा लगता था कि लिखना तो 10th स्टैंडर्ड में ही सीख लिया है, अब बस इंफॉर्मेशन होगी, कॉन्सेप्ट होगा तो लिख लूंगा. और मैं हमेशा से यही मानता आया हूं कि if we have got the content then you will find a way to write. और जब कंटेंट ही नहीं है तो आपकी दुनिया की सबसे अच्छी राइटिंग स्किल भी होगी, फिर भी आप नहीं लिख पाओगे, बिकॉज आप लिखोगे क्या? तो राइटिंग स्किल स्टार्ट्स वर्किंग व्हेन यू हैव द राइट कंटेंट इन द राइट अमाउंट एंड यू हैव द कांसेप्ट टू इंटरलिंक द कंटेंट. वो नहीं होगा तो राइटिंग स्किल आपको नहीं बचा सकती. और मैंने ये सोचा कि 10th तक आते आते इंग्लिश और हिंदी की तो राइटिंग स्किल बनी जाती है कि आपको जो पता है वो आप बोल सकते हो, जो पता है वो लिख सकते हो. आप वही नहीं लिख सकते हो जो आपको नहीं पता है. अक्सर हम थोड़ा गलत सोचते हैं, हमें लगता है कि जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो शायद जरूरी नहीं है. एक ह्यूमन माइंड में हम कंफर्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. सोच के देखना, हम कंफर्ट क्रिएट करते हैं कि मान लो कि देयर इज समथिंग दैट वी हैव टू राइट, और हमें उसके बारे में बस 3-4-5 पॉइंट पता है और हमें लिखना ज्यादा है, समथिंग लाइक 250 वर्ड्स. अब हम लिखने बैठे, हम लिख नहीं पा रहे हैं. उसके बाद दिमाग में दो बातें आती हैं, मेरे पास कंटेंट नहीं है या मेरे पास लिखने की क्षमता नहीं है. कंटेंट नहीं है, उसमें आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक
पे थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी या कोई पढ़ा दे या कोई नोट्स दे दे और आप उसको एक बार दो बार तीन बार पढ़ेंगे तब वो कंटेंट जाके हमारे ब्रेन में सेट होता है। तो अक्सर हमें कंटेंट वाली जर्नी मुश्किल लगती है और ब्रेन जो है इस दुनिया की सबसे बड़ी सबसे एफिशिएंट बहाना बनाने की फैक्ट्री है। हम सारे लोगों का ब्रेन हर गलत चीज को जस्टिफाई कर सकता है। ठीक है, अब क्या है कि उस क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट तो आपको पता थे लेकिन 3-4 पॉइंट काफी नहीं थे। तो आप क्या कहते हैं, आप ये कहते हैं कि अच्छा मुझे पता तो था लिखना नहीं आता था, इसलिए आप क्या करना है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब चलो क्वेश्चन लो किताब से लेकर के देख करके कंटेंट आंसर बनाते रहो, उससे चीजें सुधरती नहीं है। दैट डज नॉट हेल्प। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कंटेंट। कंटेंट के लिए कैसे काम करें, क्लास बुक कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वहां से अपने हाथ से नोट्स बनाने होंगे। नोट्स का ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि किसी और के बनाए हुए नोट्स हमें किताब जैसे लगते हैं, अपने बनाए हुए नोट्स ही अपने लगते हैं जिसको कि हम क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। देयरफॉर कुछ भी पढ़ रहे हो, किताब से पढ़ रहे हो, क्लास में बैठ रहे हो, अगर आप साथ साथ सोच करके समझ करके लिखते नहीं जा रहे हैं, मुश्किल है कि सोचना भी है, सुनना भी है, समझना भी है और लिखना भी है। लेकिन अगर आप इस मुश्किल काम को कर लेते हैं आगे की सारी चीजें आसान हो जाती हैं। अभी अपने लिए चीजों को आसान रखेंगे तो एग्जाम बहुत मुश्किल होगा, रिजल्ट उसे भी मुश्किल होगा। इसलिए लेट अस डू द हार्ड थिंग्स द राइट वे, बाकी की चीजें अपने आप और आसान होती चली जाती हैं। ऑन दैट नोट, मैं बात यहां से शुरू हुई थी कि कॉलेज के दिनों में मैं ऐसे नोट्स बनाता था और एक पेज अपने नोट्स के मैं 3-4-5 मिनट में रिवाइज कर लेता था बड़े आराम से एग्जाम के पहले। सो दैट इज समथिंग जो आपको भी करना है। चलिए थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया है ना। तो हम पूछ रहे हैं कि क्या हिस्ट्री के नोट्स बुक की तरह बनते हैं, उसको कैसे सॉर्ट करें। आप सर से पूछिए, सर बहुत अनुभवी हैं एंड ही विल टेल यू द राइट वे टू मास्टर हिस्ट्री। लेकिन मेरे विषय में साइंस के एनवायरमेंट में ये अप्रोच काम करेगा। मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि दूसरे सब्जेक्ट में कितना काम करेगा और वहां पर बताने की जो कॉम्पिटेंट पर्सनालिटी है वो रेस्पेक्टिव टीचर्स ही होंगे उस एरिया के। मैं अपने एरिया के बारे में बता रहा हूं, इस तरह के नोट्स आप बनाना सीखिए। चलो, तो अब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। डेफिनेशन कहती है कन्वर्जन ऑफ इनटू इनटू अ स्टेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड। अब क्या है कि N2 को किसी भी स्थिर नाइट्रोजन युक्त यौगिक में बदलने की क्रिया को आप नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। कोई नहीं कह रहा कि नाइट्रोजन को अमोनिया बनाओगे तभी इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन मानेंगे। नोबडी इज टेलिंग यू दैट। ठीक है, अभी तक चीजों को सिंपल रखने के लिए हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, बट दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन। राइट डेफिनेशन इज दिस। तो चलो अब बात करते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स एंड थ्री टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोसेसेस। थ्री टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोसेसेस एंड टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। डन। दो तरह के कंपाउंड क्या क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और दूसरा है अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन का जब फिक्सेशन हो रहा होता है तो या तो नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड के स्वरूप में बदलेगा या फिर नाइट्रोजन बदलेगा अमोनिया के फॉर्म में। डन। अब देखो, अब हम आते हैं थ्री टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पर। ये क्या हो रहा है, अब हम आ गए थ्री टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पे। अभी भी दिख ही रहा होगा आप लोगों को, काफी अच्छा। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सो दैट की आसानी। मेन तो यही है, थ्री टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोसेसेस। जो तीन तरह के प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस को हम सबसे पहले कहते हैं एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, बायोलॉजिकल फिक्सेशन। ठीक है, और जो तीसरा और लास्ट है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। तीसरे और लास्ट को क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इधर वाली चीजें आपने लिख ली होंगी, तब इसको हम थोड़ा सेंटर में कर देते हैं कि हम लोग आराम से इसको देख सकें। चलो, Randive is saying, sir, you are just sharing PPT, but whatever you speak, you should be sharing in PDF. I disagree. Whatever I speak, you should be writing it down. आप क्लास में बैठ के क्या कर रहे हैं, ठीक है? So I am not a spoon feeding type of teacher. I am a teacher who works with the students who are double hardworking than me. Okay? PDF देना होगा, that also I will give. PDF जो देने की बात होगी, that also I will give. But at any point of time, I do not do spoon feeding. I disagree. ठीक है? And don't tell me कि क्या मेथड है, ठीक है? You work with me. मैं 50 बार कह चुका हूं that you have to keep writing with me, keep understanding with me. It has its own benefits. Okay? और अब आगे से मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा। ठीक है? चलो, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन
takes place by lightning. Atmospheric fixation takes place by lightning, in which N2 is converted into oxides of nitrogen. Okay. Then biological fixation, in this N2 is converted into NH3. And industrial fixation, the industrial process that carries out reduction of nitrogen into ammonia is called Haber-Bosch process. It takes place at high temperature, high pressure and in the presence of catalyst. Okay, याद रखना Haber-Bosch process आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, राइट? तो Haber-Bosch process में हाई टेम्परेचर भी होती है, कैटलिस्ट भी होती है और हाई प्रेशर भी होता है। तब जाकर के ये इतना स्टेबल कंपाउंड जो नाइट्रोजन है, इतना स्टेबल जो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। सो दैट आल्सो क्रिएट्स व्हाट? That also creates nitrogen to ammonia. All right. So first and foremost, you write this much, and I'm going to tell you a little about biological fixation. उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक हम ये देखेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक डायग्राम देखेंगे, and we will be done with नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन cycle. We will be moving to carbon cycle. Is it done? ठीक है? Now here we are. Biological fixation. Biological fixation is something that is carried out only by some bacteria. ठीक है? Some bacteria से मतलब क्या है कि सारे बैक्टीरिया भी नहीं कर पाएंगे, कुछ ही बैक्टीरिया कर पाएंगे, और बैक्टीरिया के अलावा उन बैक्टीरिया के अलावा तो कोई कर ही नहीं पाएगा। Now these bacteria fall into two categories, those which are free living and those which are symbiotic. I have already given the example earlier, no need to do that. And if symbiosis is happening, it happens only with plants and some algae. It happens only with plants and some algae. All right. So biological fixation is carried out only by some bacteria, and those bacteria can either be free living or they can be symbiotic. Point number one. Point number two, in case of they are symbiotic, it will only be the symbiotic association will only be with plants and what? Plants and some algae. It is never going to be a symbiotic association with animals or anyone else. Okay. What is the meaning of Haber-Bosch process? नाइन्थ स्टैंडर्ड केमिस्ट्री, ठीक है, बुक देखो, वहां पे अमोनिया प्रोडक्शन की इंडस्ट्रियल मेथड में हैबर-बॉश प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, स्कूल के दिनों की चीजों को कभी मत भूलना, दे हेल्प अ लॉट इन द प्रीलिम। सो इफ यू हैव फॉरगॉटन दीस थिंग्स, गो बैक एंड रीड द स्कूल लेवल टेक्स्ट बुक, एटलीस्ट स्टैंडर्ड 10th। 10th तक सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उसकी एक वजह होती है, और उससे रिकनेक्ट आप लोग कर लो बिफोर यू गो टू द यूपीएससी examination. Now, these bacteria are also known as they are also known as diazotrophs. ये नाम याद रखना, they are also known as diazotroph. डाई का मतलब होता है टू, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, ट्रॉप का मतलब होता है ईटर। दूसरे शब्दों में, दीज आर डाई नाइट्रोजन ईटर्स। ये डाई नाइट्रोजन खा करके अपना काम चलाते हैं। इन अदर वर्ड्स N2 को यूज करते हैं और बनाते हैं NH3। तो ये नाम अब आप याद रखिएगा कि जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, वो बैक्टीरिया को हम डाइएजोट्रॉफ कहेंगे, भले वो सिम्बायोटिक हो या फ्री लिविंग हो, इट डजंट मैटर। लास्ट चीज है, ये रिएक्शन लिखना जो हमारे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की रिएक्शन होती है, जानना चाहिए। व्हाट इज द रिएक्शन लाइक?
N2 प्लस 8 प्रोटॉन्स, ठीक है। 8 प्रोटॉन लगते हैं इस पूरे प्रोसेस में, 6 प्रोटॉन नहीं लगेंगे, हालांकि जरूरत 6 की थी, लेकिन ये एंजाइम थोड़ा सा एफिशिएंट एंजाइम नहीं है, तो इसलिए इसको 8 प्रोटॉन की जरूरत पड़ती है। और जो एंजाइम यहाँ पे काम आता है उस एंजाइम को हम कहते हैं डाई नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? डाई नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। पुरानी किताबों में नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स भी कहते थे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स या डाई नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, दे मीन वन एंड द सेम थिंग, ओके। सो ये क्या करेगा, 2 अमोनिया बनाएगा और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो ये मॉलिक्यूल है ये बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट तो है कि अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और इस प्रोसेस में हाई एनर्जी की इन्वेस्टमेंट भी है। ऐसा नहीं है कि हाई एनर्जी के बगैर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाई एनर्जी लगती है, हाई एनर्जी ऑफ 16 एटीपी। एटीपी क्या है? एटीपी बायोकेमिकल एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है। एटीपी बायोकेमिकल एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बायोकेमिकल एनर्जी। मैं एक बार हट जा रहा हूं बोर्ड के सामने से, अब आप लोग रिएक्शन भी लिख लो। मैं बोर्ड के सामने से हट गया, यू कैन राइट डाउन दिस रिएक्शन। तब तक मैं थोड़े डाउट्स देख लेता हूं, अगर कोई क्वेश्चन है तो। सर, डज नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट फिक्सेस नाइट्रोजन विदाउट द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया? नो, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स विदाउट द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया दे कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। NH3 is also as stable as N2. Wrong. It is not. मनी कह रहे हैं सर प्लीज स्क्रीन बिना मूव किए लिखिए, कॉपी में सेट नहीं होता। अरे अगर कभी स्क्रीन मूव ही कर दिया तो नीचे लिख लो, क्या बात कर रहे हो? डन डन डन। प्रमोद कह रहे हैं सर आई प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू एट फर्स्ट एक्सप्लेन द टॉपिक देन वी राइट। वो साथ साथ में ही कर रहा हूं प्रमोद, ऐसा थोड़ी ना कि एक्सप्लेन किए बगैर लिखवा रहा हूं। चलो डन। What is ATP? ATP is adenosine triphosphate and it is the most important source of biological free energy. Nothing more than that is needed. It is a phosphorus containing compound, no doubt about it, ठीक है ना? It is a phosphorus containing compound. Therefore it is known as adenosine triphosphate. चलो अब हम लोग लास्ट में नाइट्रोजन साइकिल का ड्राइंग देख लेते हैं एंड दैट विल बी ऑल। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। चलो इसको एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ एज पीडीएफ। आप लोग के साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है। वी आर बैक टू द स्लाइड। यस, वी आर बैक टू द स्लाइड। अब अगला 4 मिनट इस स्लाइड को दे दें और अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हाउ इट इज वर्किंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है इसके 3 एग्जिट हैं। पहला एग्जिट जो है वो है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये रहा पहला जो एग्जिट है वो है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा जो एग्जिट है वो फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की वजह से होती है, वो दूसरा प्रोसेस है। मैं भी थोड़ा सा बोर्ड के सामने से हट गया हूं सो दैट यू कैन फुली सी द बोर्ड। उसके बाद इससे अमोनियम और अमोनिया का सॉइल में एक पूल बनता है, ठीक है। इससे सॉइल में अमोनियम और अमोनिया का एक पूल बनता है जो आप नीचे देख रहे हैं। इस पूल में अमोनिया के जो दूसरे सोर्सेज हैं वो है कि डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स जो होते हैं उन पे डिकम्पोजर्स वर्क करेंगे और अमोनिफिकेशन होगा और उससे अमोनिया का पूल बनेगा, राइट। अब ये अमोनिया नाइट्रिफिकेशन होगी, इसकी पहले नाइट्राइट बनेगा, फिर नाइट्रेट बनेगा और ये नाइट्रेट प्लांट्स के द्वारा एसिमिलेट होगा। इसमें सिंप्लिसिटी के लिए जो एक चीज नहीं दिखाई गई है वो सिंप्लिसिटी की बात यह है कि हमने ये नहीं दिखाया कि सम प्लांट्स कैन टेक अप अमोनिया आल्सो, सो वो वाला पार्ट यहाँ पे मिसिंग है, बट नाउ यू ऑलरेडी नो। और फिर हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर से भी नाइट्रेट्स रिलीज होते हैं जो प्लांट एसिमिलेट कर सकते हैं और नाइट्रेट का कुछ क्वांटिटी जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन के हवाले हो जाएगा एंड दैट विल रिलीज
नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। सो दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। एक लास्ट चीज जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये है कि हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर चेंजिंग द नाइट्रोजन साइकिल। आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी वो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो नाइट्रोजन साइकिल को चेंज कर रही हैं? जो फर्स्ट ह्यूमन एक्टिविटी है जो नाइट्रोजन साइकिल को चेंज करती है, दैट इज कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स क्या क्या होते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इन सबके कंबसन से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही है, साथ ही साथ सल्फर के ऑक्साइड्स भी निकलते हैं और नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड्स निकलते हैं। यहां पे हमारा कंसर्न है नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, है ना? अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड से अपना कंसर्न बना के रखें तो आप देखोगे कि एटमॉस्फेयर में एक्सेसिव नाइट्रोजन का ऑक्साइड जमा हो रहा है। इसका आउटकम यह है एक्सेसिव नाइट्रोजन ऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। अब उससे क्या होगा? उससे एसिडिक रेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट गिव्स राइज टू एसिड रेन। सो दिस इज द आउटकम दैट यू आर लुकिंग एट। आर वी क्लियर अबाउट इट? ये सबसे पहला ह्यूमन इंपैक्ट है। ठीक है, ये ह्यूमन इंपैक्ट नंबर 1 है। और क्या ह्यूमन इंपैक्ट हो सकता है? अब हम जरा दूसरे ह्यूमन इंपैक्ट को देख लें। ह्यूमन इंपैक्ट नंबर 2 यहां पे रखते हैं। मैं कहां से काम करूं कि आप लोगों को अच्छा दिखे? ये तो बिल्कुल सेंटर में हो गया। चलो यहां पे काम करते हैं और मैं थोड़ा सा और साइड हट जाता हूं सो दैट कि अब ठीक है ना? चलो, इंपैक्ट नंबर 2, विल पॉल्यूशन इंपैक्ट नाइट्रोजन साइकिल। बिल्कुल उसी की तो बात ही कर रहे हैं हम लोग। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हम ऐड कर रहे हैं वो पॉल्यूशन ही तो है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंपैक्ट नंबर 2। इंपैक्ट नंबर 2 इज एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, उससे क्या होगा? नाइट्रेट पॉल्यूशन ऑफ वाटर टेबल। चलो पहले ये लिख लो फिर पीछे करता हूं। और इससे क्या होगा? डिक्लाइन इन वाटर क्वालिटी। इससे डिक्लाइन इन वाटर क्वालिटी। और यही वो वाटर है ना जिसको पी करके ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। साक्षी कह रही है कि सर अगर हैंडमेड साइकिल दे दीजिए इट इज मोर हेल्पफुल। चलो देखो एग्जाम में तो ड्रॉ करना नहीं है, मैंने हैंडमेड क्यों नहीं दिया उसका रीजन बता देता हूँ। एक तो उसमें टाइम लगेगा, पहले मैं बनाऊंगा, आप कॉपी करोगे, जब इतना डिटेल दे सकता हूँ तो बना भी सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि मेंस का ये टॉपिक है नहीं, प्रीलिम में आपको बनाना नहीं है, तो दैट मींस हैंडमेड की जरूरत नहीं है। अगर समझने की बात है तो आप नाइट्रोजन साइकिल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अब आप नहीं समझ रहे हो ऑलरेडी, है ना? और अगर आप फिर भी बोलोगे तो मैं हाथ से बना करके अपलोड करवा दूंगा, राइट? साइट तो होगी अब मैं। राहुल कह रहे हैं कि मेन से रिलेटेड टॉपिक आपसे शुरू होंगे। राहुल बायोम के बाद जितने टॉपिक होंगे वो प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए रेलेवेंट रहेंगे। बायोम की टॉपिक के बाद तो आज बायोकेमिकल साइकिल अगर हम फिनिश कर देते हैं जो कि कर लेंगे, तो उसके बाद आई थिंक कि सारे टॉपिक बायोम करेंगे और बायोम के बाद सारे टॉपिक हमारे मेन से ही रिलेटेड रहेंगे। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सर मेंस राइटिंग में वीकेंड पे एक सेशन लिया करिएगा। चलो मैं कुछ स्पेशल सेशन मैं भी सोच रहा हूं, मतलब टीम से भी मेरी बात हो रही थी तो उन लोगों ने भी कहा कि सर लीजिए कुछ स्पेशल सेशंस। तो 1 घंटे के कुछ स्पेशल सेशंस रखेंगे और बाइलिंगुअल ही रखेंगे कि एक ही क्लास में हिंदी वाले भी हमारे स्टूडेंट और इंग्लिश वाले भी हमारे स्टूडेंट दोनों जुड़ सकें, ठीक है? अनुराग पूछ रहे हैं जुलॉजी ऑप्शनल इकोलॉजी सेक्शन कवर हो जाएगा? नहीं, ये जीएस है, ओवरलैप है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो थोड़ा डीप है, दैट इज अ वेरी डीप मामला। सो अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि पूरा का पूरा यहां से कवर हो जाएगा तो ये सही एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। चलो, तो नाइट्रोजन साइकिल तो हो गया, कार्बन साइकिल पर आ जाते हैं। कार्बन साइकिल इस दुनिया के चंद सबसे आसान साइकिल्स में से एक है। कार्बन साइकिल को पहले समझते हैं, आपको ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और फिर कार्बन साइकिल को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो कार्बन सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन साइकिल मेनली कहां कहां कौन कौन से हिस्सों में पाया जाएगा अर्थ के पूरे सिस्टम में। तो कार्बन साइकिल डेफिनेटली, ठीक है, अगर हम अर्थ के सिस्टम की बात करते हैं तो कार्बन साइकिल डेफिनेटली पाया जाएगा, सबसे पहले तो पाया जाएगा एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की एक अच्छी खासी मात्रा है।
तो एटमॉस्फेयर में तो कार्बन साइकिल पाया ही जाएगा। साथ ही साथ दूसरा जो एक बहुत बड़ा पार्ट है वो है बायोस्फीयर। और बिकॉज हम कैल्शियम कार्बोनेट रॉक्स की भी बात करते हैं, एक मिनट इस पूरे पोडियम को थोड़ा सा मैं साइड लेता हूँ सो दैट कि आप चीजें मैं इस तरफ को रख सकूं और ये आराम से कवर हो सके, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के अलावा बायोस्फीयर में भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कार्बन साइकिल का, और कार्बोनेट रॉक्स की वजह से लिथोस्फीयर में भी होता है। मतलब ये कि ये जो तीन हैं वो कार्बन साइकिल के मेजर लोकेशंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्बन साइकिल हाइड्रोस्फीयर में नहीं है। हर एक वाटर में, चाहे वो रिवर में वाटर हो, चाहे वो ओशन वाटर हो, हर एक वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व तो होता ही होता है, जिसकी वजह से थोड़ी एसिडिटी भी आती है। तो हाइड्रोस्फीयर में भी है। अब बात करते हैं कि अब बात करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर वाला कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे, ठीक है, एटमॉस्फेयर वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे एटमॉस्फेयर में पहुंचता है और एटमॉस्फेयर से वो हटता कैसे, एटमॉस्फेयर वाला कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले अगर हम एटमॉस्फेयर वाले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये देखो, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड सोर्सेज, सोर्सेज इज बायोटिक रेस्पिरेशन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन, थर्ड इज फायर एंड वोल्केनिक एक्टिविटी, फोर्थ इज ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड हियर वी सी कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल क्या क्या होते हैं, कोल और सारे के सारे पेट्रोलियम फ्यूल, तो वो होगा, ठीक है। इसके बाद फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के बाद इंडस्ट्रियल एमिशंस। कुछ इंडस्ट्री से अपार्ट फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल ऐसे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो इसका एग्जांपल रहेगा वो रहेगा सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में हम कैल्शियम कार्बोनेट के रॉक्स को हीट करते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होगा। तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड आप देखते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के ये तीन मेजर सोर्सेज हैं हमारे पास। जो फर्स्ट सोर्स है वो है बायोटिक रेस्पिरेशन, जो हम रेस्पायर करते हैं, हम प्लांट कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ही। Decomposition, all the biological matter that gets decomposed will be releasing carbon dioxide. Apart from that, there are fires and volcanic activities, and last is human activities, and there are three human activities that we see. लेकिन एक और है, और वो है ocean and soil release of कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओशन, कोई भी वाटर बॉडी, सॉइल, ये सब के सब हाई टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते ही करते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होगा और जो डिसॉल्व या ट्रैप कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट रिलीज। तो ये नोन फैक्टर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आउट ऑफ द ब्लू हो रहा है। दीज आर वेरी वेल नोन, वेल एस्टैब्लिश्ड फिनोमेना कि जहां पे ओशन वाटर का टेम्परेचर कम होगा वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ओशन के अंदर एब्जॉर्ब होगी, डिसॉल्व होगी, और जहां पर ओशन वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा वार्म होगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होता है। तो दीज आर द फाइव सोर्सेज दैट वी आर लुकिंग एट, 1 2 3 4 एंड 5। हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की। So now that we are done with the sources, let us see कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जाता कहां कहां है। Where does this carbon dioxide go? Where it is lost to? It is lost to these places. First, absorption by colder parts of hydrosphere. That is one big part. Second is it is lost to photosynthesis by
plants and algae. So plants on the land, very few plants in the water bodies, and algae mostly in the water bodies. Okay, so these are the two places where the atmospheric carbon dioxide gets lost. अच्छा, ओशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एंड द सेकंड इज द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज रिलीज्ड बाय रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ द ओशनिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है विच गॉट लॉस्ट। अब जब हम बायोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड पर आ जाते हैं, और वो बायोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वो बायोस्फेरिक कार्बन है। किसके स्वरूप में ये कार्बन पाया जाएगा बायोस्फीयर में? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ बायोमास। ठीक है, अब दूसरी बात हो गई, सोर्स क्या है, एंट्री सोर्स क्या है, सर्कुलेशन सोर्स क्या है? एंट्री सोर्स इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड reacts with water. ठीक है, so in which carbon dioxide reacts with water, and to balance the entire reaction we will take 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water, and then sun's radiant energy। ठीक है, so sun की radiant energy होगी, and then the product is carbohydrate, right? so ये एक simple carbohydrate glucose का formula है, and rest of it is what? Rest of it is oxygen that gets released. So this is the photosynthesis, that is the entry point of carbon in the biosphere. सर्कुलेशन कैसे होती है? जब एक बार प्लांट्स और एल्गी बायोमास अपना बना लेते हैं, तो सर्कुलेशन हैपेंस वाया व्हाट? सर्कुलेशन हैपेंस वाया नथिंग बट ट्रॉफिक चेन। ग्रेजर्स will eat the plant, carnivore will eat the grazers, something like this. So circulation is by ट्रॉफिक चेन। ओके, सो सोर्स भी समझ में आ गई कि एंट्री क्या है, सर्कुलेशन क्या है, एंड देन लॉस ऑफ कार्बन। So loss of carbon first and foremost is respiration, in which CO2 is getting released, that is the first form of carbon loss. Second is decomposition, in which also carbon dioxide is getting released, and last but not the least, combustion of बायोलॉजिकल मैटर। जैसे फॉरेस्ट फायर हो गई ना, तो बायोलॉजिकल मैटर जल उठता है। ठीक है, तो कंबशन ऑफ बायोमास, उसमें भी CO2 रिलीज होता है। लेकिन एक और प्रोसेस है, ठीक है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज मिथेनोजेनेसिस, मतलब मीथेन का फॉर्मेशन। मिथेनोजेनेसिस, सो दैट इज मीथेन फॉर्मेशन बाय सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन फॉर्म कर सकते हैं। ये हो गई बायोस्फीयर में कार्बन के फॉर्म्स क्या क्या हैं, सोर्स क्या है, लॉस किन फॉर्म्स में होता है। ये कह रहे हैं सर आपका हैंडराइटिंग बहुत एक्सप्लिसिट है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन में क्या गड़बड़ी है? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ रहता है। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट, काफी लोगों ने ये पॉइंट किया था, तो नहीं वो एब्सेंट माइंडेडनेस में हो गया। 6CO2, थैंक यू। कलीम पूछ रहे हैं कि नाइट्रोजन साइकिल हाइड्रोस्फीयर में होता है। कलीम, हाइड्रोस्फीयर में नाइट्रोजन साइकिल का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है, ऑप्शनल के लेवल पे हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ जीएस में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं, तो इसलिए उसको लेकर के एकदम परेशान मत होइए। चलो, तो ये हो गई बायोस्फीयर में। तो बायोस्फीयर में आप देखते क्या हो ना कि दो फॉर्म होते हैं,
फिर क्या होता है, सोर्सेज दो हैं, एंट्री का तो एक ही सोर्स है मेजर, वो है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उसी के रिएक्शन में ये गड़बड़ी हुई थी। दूसरा क्या है, सर्कुलेशन ट्रॉफिक चेन से होगा, जो इकोसिस्टम में वी हैव ऑलरेडी लर्न, तो वहां पे हमें कोई परेशानी नहीं है। लॉस रेस्पिरेशन, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो डेड एंड वेस्ट मैटर है उसकी डिकम्पोजिशन होगी, तो डिकम्पोजिशन के अलग अलग लेवल पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और रिलीज होगा। लास्टली कंबसन ऑफ बायोमास, कई बार फॉरेस्ट फायर वगैरह हो जाती है तो उसमें काफी बड़ी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। एंड लास्टली मिथेनोजेनेसिस, तो मिथेनोजेनेसिस का इशू ये है कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो अपने बायोकेमिकल प्रोसेस से मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड दिस बैक्टीरिया आर कॉल्ड मिथेनोजेन, मतलब मीथेन प्रोड्यूसर्स। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल एंड बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ मिथेनोजेनेसिस हैपेंस इन द गट, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में, हैपेंस इन द गट ऑफ काउज, बफेलोज, गोट्स, शीप्स एंड ऑल ऑफ दिस, इन सबके गट में मिथेनोजेनेसिस चल रहा होता है। क्यों चल रहा होता है ये समझने की बात है। मिथेनोजेनेसिस इसलिए चल रहा होता है उनके गट में बिकॉज ये सबके सब पत्ती खाने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है। पत्तियों में बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्या होती है, सेलुलोज होती है, और सेलुलोज जो होती है पत्तियों में, उसकी वजह से व्हाट हैपेंस कि वो सेलुलोज नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं होता, आपके बॉडी में वो एंजाइम नहीं होते जिससे सेलुलोज डाइजेस्ट होता है। लेकिन जब हम गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इनकी बात करते हैं तो इन सबके गट में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उन बैक्टीरिया की मेटाबॉलिज्म ऐसी होती है कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते वक्त वो मीथेन रिलीज करेंगे, और वो मीथेन कहां जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, और वो मीथेन एटमॉस्फेयर में जाकर के एक ग्रीन हाउस गैस बनता है। इसीलिए जो डेवलप कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री को ब्लेम करते रहते हैं कि आपके यहाँ एनिमल रियरिंग, पशुपालन की एक्टिविटी इतनी ज्यादा है जिससे कि एटमॉस्फेयर में मीथेन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। मीथेन का एक और बड़ा जबरदस्त स्रोत है, पीटी के क्वेश्चन देखते जाइएगा, और मीथेन से उनको बहुत प्यार है। 2022 में भी पूछा था, बात चल रही है तो ये भी समझ लो। मीथेन का एक जो दूसरा सबसे जबरदस्त स्रोत है वो है जब हम धान की खेती करते हैं, तो आपको पता है कि धान की खेत में काफी वक्त तक काफी ज्यादा मात्रा में पानी लगा होता है, तो इस तरह के सबमर्ज कंडीशन में उस खेत में काफी बड़ी मात्रा में मिथेनोजेंस एक्टिव हो जाते हैं, और मिथेनोजेंस जब इस तरह के सबमर्ज फील्ड कंडीशन में एक्टिव होते हैं तो खूब ज्यादा मात्रा में मीथेन रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। तो डेवलप कंट्रीज जैसे अमेरिका या यूरोपीय कंट्रीज का ये भी दावा है कि देखिए, एक तो आपके यहाँ कैटल रियरिंग बहुत ज्यादा है, पशुपालन बहुत ज्यादा है, और पशुपालन के साथ साथ आपके यहाँ बहुत ज्यादा धान की खेती भी होती है, और उसकी वजह से उस मीथेन की मात्रा बढ़ती जा रही है। कुछ हद तक उनके दावे में साइंटिफिक सत्यता तो है, कुछ हद तक नहीं, पूरी साइंटिफिक सत्यता है, लेकिन अगर पॉलिसी लेवल पे जाओगे तो वो जितनी आसानी से ये बात कह जाते हैं, अगर हम डेयरी इंडस्ट्री पर ध्यान ना दें, अगर हम अपनी खेती पर ध्यान ना दें, तो आप लिख के रख लो कि सबसे पहले अमेरिकी सुपरमार्केट में ये उत्पाद मिलना बंद हो जाएंगे। उनका पशुपालन इतना कम है, उनकी कृषि खासतौर पे राइस की खेती तो न के बराबर है, तो ये लोग अपने मार्केट से ये प्रोडक्ट लेने के लिए तरस जाएंगे। इस बार जब इंडिया ने बैन किया गेहूं के प्रसंस्करित उत्पादों पर, जैसे कि आटा वगैरह पे, उस पर इंडिया ने बैन किया, तो अमेरिकी मार्केट में आटा मिलना बंद हो गया। फिर उन लोगों को कनाडा से इंपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन और रूस का स्रोत तो ऐसे ही बंद था। इंडिया ने भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की उपलब्धता को देखते हुए गेहूं के निर्यात और गेहूं के प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात पर बैन लगा दी कुछ दिन के लिए। दिक्कत किनको हुई, उनको हुई जो हमें प्रवचन दे रहे होते हैं, राइट। तो कहने के लिए वो बहुत बातें कह जाते हैं ताकि उनकी जिम्मेदारियों पर किसी का ध्यान ना जाए, लेकिन और हम ग्लोबल वार्मिंग में उस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि मिथेनोजेंस उन कैटल के गट में होते हैं जो घास खाते हैं, और मिथेनोजेन वहां भी पाए जाते हैं जहां पे सबमर्ज तरीके से, थोड़ा डूबे हुए तरीके से हम खेती करते हैं। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है, इससे ज्यादा यहाँ पे ना तो बोलने और लिखने की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे आप रहने दीजिए। चल, अब हमने क्या देख लिया, एटमॉस्फेयर देख लिया और हमने देख लिया बायोस्फीयर। अब थोड़ा सा लिथोस्फीयर, बहुत छोटा सा हिस्सा है। पहले लिथोस्फीयर में किस किस रूप में है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ह्यूमस इन सॉइल, ह्यूमस की बात हो चुकी है, डिकम्पोजिशन के दौरान रिपीट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कार्बोनेट रॉक्स, ठीक है ना। सो कार्बोनेट रॉक्स का भी एक योगदान है, खासतौर पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसको हम डोलोमाइट कहते हैं, और ये तो हमारा सिंपल सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो ये दो मुख्य फॉर्म हैं, सोर्सेस, डेड एंड वेस्ट बायोमास, और दूसरा कार्बोनेट आयंस। अच्छा, ये कार्बोनेट आयन कैसे बनते हैं? जब पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है, ठीक है ना जी, जब पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। फिर ये हो जाता है डिसोसिएट। एक चीज याद रखिएगा, स्कूल के दिनों की बात है जब आपको बताया गया था कि कोई भी एसिड एक्वस मीडियम में जाके डिसोसिएट हो जाता है और एक प्रोटॉन का दान करता है या एक प्रोटॉन को रिलीज करता है, तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा HCO3 माइनस प्लस H प्लस। अब ये जो हमारा HCO3 माइनस है, ठीक है, ये फिर CO3 डबल माइनस में चेंज हो जाएगा और एक और प्रोटॉन बना देगा, और यही है जो फिर कैल्शियम से कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम से कार्बोनेट करके डोलोमाइट बनाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा, वगैरह वगैरह। तो सोर्स यही है। कार्बोनेट आयन कहां से आए, अब आपको बखूबी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में भरा पड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड के वाटर में डिसॉल्व होने से कार्बोनेट आयन आए, और कहां से आएंगे, ठीक है। तो सोर्सेस तो यही है, और यहां से रिलीज क्या है, अच्छा
सबकी तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतने सुंदर तरीके से किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। आप पहले 50 बुक्स निकालिए इकोलॉजी की, ठीक है, 50 बुक्स, एक दो नहीं 50 बुक्स निकालिए इकोलॉजी की, और उसके बाद आप ढूंढिए कि कहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। जब कहीं नहीं मिलेगा तो इस क्लास की खूबी समझ में आएगी। जब आप बगैर किताब देखे आते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये तो किसी न किसी किताब में होगा ही, सर बस कलेक्ट करके बता रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं है। चलो, हो गई रिलीज। मेनली किस फॉर्म में? सबसे पहला, कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलता है? जब डिकम्पोजिशन होता है, ओके। और दूसरा क्या? कार्बोनेट रॉक की जब माइनिंग होती है, अलग अलग वजहों से आप कार्बोनेट रॉक की माइनिंग भी तो करेंगे ना, तो तब इसकी रिलीज होती है। तो लिथोस्फीयर हो गया। और हाइड्रोस्फीयर हमें करना नहीं है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर हमें करना नहीं है। करना क्यों नहीं है? हाइड्रोस्फीयर इसलिए नहीं करना कि वहां पे डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा, ठीक है, जो कि कार्बोनिक एसिड बनाएगा और एसिड एसिड फिर डिसोसिएट होगा। चलो, अब आ गए हम कार्बन साइकिल के पूरे शेप पे। इसको पहले एक्सपोर्ट करके सेव कर दें कि आप लोगों के साथ शेयर हो जाए। ये दोनों ही आज के सेव हो गए हैं। अब आ गया हमारा कार्बन साइकिल। ये है कार्बन साइकिल। इसको जरा गौर से देखें। सबसे पहले गौर करो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड पे, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है, और आप लोग घड़ी पे मत देखना कि अब 12:30 होने जा रहा है तो 2 मिनट नहीं रुक सकते। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि अच्छा काम वही कर पाते हैं जो घड़ी पर नजर नहीं डालते। तो ये तब तक लागू होती है जब तक कि आप मेंस एग्जाम नहीं दे रहे, वहां पे घड़ी पर नजर जरूर रखिएगा। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले देखो कि ओशन में जाके डिसॉल्व भी होता है, और जो ओशन के फाइटोप्लैंक्टन है वो इससे फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह होता है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होता है, डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होकर के उससे जो कार्बोनेट निकलेगा वो मैरीन डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जमा होता रहेगा, ठीक है। तो ये ओशन वाला पार्ट हो गया। इधर आप देखो तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल में भी एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। और फिर अगर आप जो मेजर देखोगे तो एसिमिलेशन बाय प्लांट्स, और प्लांट्स के बाद एनिमल्स में जाएगा, और डेड एंड वेस्ट मैटर जो है वो नीचे आएगा, जो कि ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन जिसका हो रहा होगा, राइट। और ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन का एक हिस्सा फॉसिल फ्यूल में हो रहा होगा, और वही फॉसिल फ्यूल जब व्हीकल फैक्ट्रीज के जरिए जब उसका कंबसन होगा तो फिर से एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट होगा। तो कार्बन साइकिल अगर इस नजर से देखें तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली प्लांट और एल्गी फोटोसिंथेसाइज करेंगे, ट्रॉफिक चेन चलेगा, डिकम्पोजिशन होगी वगैरह, राइट। और अगले लेवल पे आप क्या देखते हो? यहाँ पर अगले लेवल पे आप ये देखते हो कि कुछ हिस्सा समुद्रों में एब्जॉर्ब होता है और एक छोटा सा लिथोस्फेरिक पार्ट है। तो आपने जितना कुछ सीखा है उससे कहीं कम इस डायग्राम में दिया हुआ है, इससे ज्यादा हमने क्लास में अभी अभी सीखा है इस चीज को, है ना। तो दैट इज ऑल आज के लिए। अब इससे ज्यादा हम लोग कर नहीं सकते आज, तो आज हम लोग क्लास को यहीं छोड़ रहे हैं। सो हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड। अब थोड़ा सा रेस्ट कीजिए और उसके बाद फिर रिवीजन पे आप लोग बैठिएगा। अगर कुछ छूट गया हो तो वीडियो उसी के लिए है, सो प्लीज गो थ्रू द वीडियो इफ देयर इज एनीथिंग दैट you have missed during the class. Have a great day ahead. Goodbye. लाइव हो गए हम लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो अच्छी आ रही है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब कोशिश की कनेक्ट करने की तो आई वाज गेटिंग अ मैसेज दैट द क्लास इज नॉट कॉन्फिगर्ड, बट नाउ द क्लास इज कॉन्फिगर्ड। आई कैन सी द वीडियो, आई कैन सी योर मैसेजेस फ्लोइंग विद इन द चैट। सो आई जस्ट wanted to know that am I clearly visible to all of you? Am I clearly audible to all of you? So if it is all clear, then we can start with today's class. So in the meantime, so we are at class 10, right? So we are at class 10 and the date is obviously 25th of April 2023. So we are at class 10
Yesterday we had already studied the water cycle and nitrogen cycle. For the sake of revision, I have brought nitrogen cycle on the screen first, and then once we have revised it a little bit, then we will be seeing the next cycles like carbon cycle, sulfur cycle, and phosphorus cycle, right? So audio and all is very good. So all okay, thank you. And I hope all of you are also doing good this morning. And let us now start the class. It is 11:04 a.m. and I think we should now start the class without any further delay, right? So here we are. This is the nitrogen cycle that we had seen yesterday, and we had written down the procedures of nitrogen cycle, right? But in this nitrogen cycle, I'm just wanting to revise a few things so that you become totally clear about the things. So isko thoda sa hum bada kar dete hain, and now let me write down on the board how does the nitrogen cycle look like, okay? Give me a moment. So this is something that you can make with me, that this is the atmospheric nitrogen, और 5 मिनट लगेगा इसको रिवाइज करने में, और ये मैं शेयर भी कर लूंगा, but please write down if you can. So this is the atmospheric nitrogen. So this phase is atmosphere. From the atmosphere, nitrogen will be removed in the form of oxides of nitrogen by lightning, and nitrogen will also be removed